Hello friends, in this video I am going to talk about the ascending tracts or the somatosensory tracts. So the objectives of this video are to discuss the various types of ascending tracts which run in our body, and also I will discuss the clinical aspects. Okay, so basically ascending tracts होते क्या हैं? They transfer the information from receptor to CNS, which means they are sensory in nature. ठीक है, so let's talk about the transverse section of the spinal cord here. This is the white matter and this is the grey matter. Okay, white matter is divided into the posterior white column, ये lateral white column है, और यहाँ पे क्या है anterior white column. So different types of fibers run through these column and enter to the sensory cortex. Okay, ये जो fibers होते हैं इनको अपन बोलेंगे tracts, and they are posteriorly जो run करने वाले हैं, which means the posterior white column के through जो run करेंगे, they are the dorsal spinothalamic tract, which include the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. Now the fibers which will run laterally are the lateral spinothalamic tract, dorsal cerebellar spinocerebellar tract, and the ventral spinocerebellar tract. Okay, so anteriorly the fibers which would be running are the ventral spinothalamic tracts. So firstly we will be discussing about the posterior or the dorsal spinothalamic tracts. Okay, so let's discuss about it, which includes the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. So the dorsal spinothalamic tract. So I'll be drawing the transverse section of the spinal cord at two levels, the upper limb level and at the lower limb level. So we have drawn the transverse section. Okay, so this is at the upper limb level and this one is at the lower limb level. So the information from the receptor would be coming to the dorsal root ganglia. This one is the dorsal root ganglia, and from here the first order neurons will be arising. Okay, so the first order neurons will come to the spinal cord, and here they would enter the posterior white column. Okay, so they would run upwards. The fibers which would be running upwards are known as fasciculus cuneatus, which means the fibers of the upper limb. Okay, and here in the this one lower limb also, the receptors would carry the information up to the spinal cord, up to the dorsal root ganglia. The dorsal root ganglia would give origin to the first order neurons. The first order neurons will enter the spinal cord and they would run, the fibers would run upwards for the lower limb. So these are known as the fasciculus gracilis. Okay, so an interesting point comes here is that when the fasciculus gracilis fibers will run upwards and they will reach up to the level of fasciculus cuneatus, so they are pushed medially. They are pushed medially towards the by the fasciculus cuneatus. So we can say that what is going to be the arrangement from sacral to cervical region, sacral to cervical. What is the arrangement is medial to lateral. Okay, why is it so? Because medially are the fibers of the lower limb or the fasciculus gracilis, and laterally are the fasciculus cuneatus, which are the fibers from the upper limb. Okay, so we have discussed till here. Now I'm going to draw the section, transverse section of up to the level of medulla, or okay, so let's see this. So the fibers would be running, the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus would be running upwards up to the medulla oblongata. This is the midline and this is the medulla. Okay, so I'm again drawing the transverse section of the spinal cord here. So these are the fibers. The medial are the fasciculus gracilis, and laterally placed are fasciculus cuneatus. Okay, so these are the first order neurons. We know all
these are the first order neurons. Okay, so they would run upwards and they would end up at the nucleus cuneatus and nucleus gracilis. The medially placed one is known as the nucleus gracilis, and the nucleus which is placed laterally is the nucleus cuneatus. Okay, according to the arrangement of their fibers. So these are the first relay station. So the fibers would, the second order neurons will arise from these nucleus. Okay, so let's talk about the second order neuron pathway. So from the medulla, the second order neurons will be arising here. Okay, so this one is the midline and these are the nucleus cuneatus, and this is nucleus gracilis. Okay, then the fibers which are running upward, okay, these are the second order neurons because this was the first relay center. So from the first relay center the second order neurons would be arising and they would end up at the thalamus. Okay, and where in the thalamus? It would end up in the ventero-posterolateral nucleus of the thalamus. Ventero-posterolateral nucleus of the thalamus. Okay, so the thalamus is the second relay center here, और द सेकेंड रिले स्टेशन वी कैन से. ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली सेकेंड रिले स्टेशन की भी. तो अब अपन बात करने वाले हैं कि जो सेकेंड रिले स्टेशन है यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होने वाली है. तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होंगे वो कहाँ पे किस तरीके से अराइज होंगे? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे जाएंगे? पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ये कहाँ पे चल जाएंगे? सेंसरी कॉर्टेक्स में चल जाएंगी एंड हेयर दे विल फाइनली ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन. तो ये अपन ने बात की इसके पूरे पाथवे के जो डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है इसका पाथवे क्या होता है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि जो फाइबर्स मतलब डॉर्सल रूट गैंग्लिया से अराइज हो रहे हैं और कहाँ पे लेके जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक. ठीक है, तो वो मतलब कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक होता है ए अल्फा और होते हैं ए बीटा. इनकी स्पीड होती है 70 to 120 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर अपन इसके अब फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. दे परफॉर्म एपिक्रेटिक फंक्शन. व्हाट डज दिस मीन? एपिक्रेटिक फंक्शंस मतलब होता है एपिक्रेटिक सेंसेशंस को ये मतलब ट्रैवल करवाते हैं. एपिक्रेटिक सेंसेशंस मतलब होता है विच इंक्लूड द फाइन टच. फाइन टच इंक्लूड करेगा और क्या इंक्लूड करेगा? ये वाइब्रेशन को भी इंक्लूड करता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोप्रायोसेप्शन. ठीक है, सो ये इंक्लूड करने वाला है प्रोप्रायोसेप्शन को भी. ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स थे और बेसिक कुछ फंक्शंस थे. इनके क्या फंक्शंस होते हैं? ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जो डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इट हैज़ अ न्यूअर ओरिजिन. मतलब और फिर इसके ये भी बात है कि इसका जो स्पेशल ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है विच मीन्स एकदम पिन पॉइंट टच वाली चीज़ इसमें आती है. ठीक है, डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में. Okay, so we have discussed about the dorsal spinothalamic tract. Now I'll be going to discuss about the lateral spinothalamic tract. Okay, so मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ lateral spinothalamic tract की. Thalamic tract. Okay, so वापस से I'll draw the transverse section of the spinal cord here. From two levels again, that is first is at the level of upper limb and the second would be at the level of lower limb. Okay, so here it is. Again the first order neurons would be arising from the dorsal root ganglia only, and from the upper limb, in the upper limb and lower limb both the first order neurons would be arising from the dorsal root ganglia. Okay, so let's discuss this part. So the receptors coming from the upper limb and from the lower limb. Okay, so here upper limb, the receptors would be carrying the sensations, and then
जो फाइबर्स रिसेप्टर्स से लेके आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, दे वुड एंटर द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, इट इज़ द मतलब गिव्स द ओरिजिन टू द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे अराइज होंगी, ठीक है। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा कि लोअर लिम्ब वाले में भी यही होगा कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया वुड गिव द ओरिजिन टू द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, एंड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे चल जाएंगी, टू द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जाने के बाद ये क्या करने वाली है, दे वुड सिनैप्स विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, एंड यहाँ की जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगी ये एंटीरियर कमिश्चर को क्रॉस करेंगी, एंड दे वुड कम टू द लेटरल वो लेटरल वाइट कॉलम पे जाने वाली है, ओके। they would cross the midline through the anterior commissure and they would come to the lateral this white column, okay। so अब यहाँ पे क्या होने वाला है, lateral white column के थ्रू अब ये ऊपर जाएंगे, अपर लिम्ब वाली भी और लोअर लिम्ब वाली भी। बट यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी होती है क्या कि जो पहले क्या हो रहा था कि इन द डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या हो रहा था कि अरेंजमेंट सेक्रल टू सर्वाइकल था, मीडियल टू लेटरल। बट यहाँ पे क्या करने वाले, अपर लिम्ब वाले जो फाइबर्स होंगे इट वुड पुश द लोअर लिम्ब फाइबर्स टू द लेटरल साइड, ओके। सो व्हाट इज द अरेंजमेंट हेयर इज सेक्रल टू सर्वाइकल, here it is lateral to medial, okay। so here comes one difference, it is lateral to medial, okay। और फिर अपन ने यहाँ पे अपन बात कर लेंगे, अब इसके आगे के सेक्शन की भी अपन बात करने वाले हैं कि आगे ये कहाँ पे they would end and what is the relay stations है। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स थे वो ये ऊपर चलेंगी, they would कम टू अप टू द थैलेमस, ओके। थैलेमस के भी कौन से पोर्शन पे आएंगे, थैलेमस के वेंटेरो पोस्टीरियर न्यूक्लियस पे जाएंगी, वेंटेरो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस ठीक है। और यहाँ से ये क्या करने वाली है कि ये कुछ कोलेटरल्स देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका फंक्शन की अब अपन बात करेंगे आगे कि पेन एंड टेम्परेचर में फंक्शन होता है, बट बिफोर एंटरिंग द थैलेमस दे वुड आल्सो गिव सम कोलेटरल्स टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे थैलेमस के पास ही आ गई, इट इज़ द रिले स्टेशन, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से अराइज होंगे एंड दे वुड गो थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, और ये वापस कहाँ पे चल जाएगा, सेंसरी कॉर्टेक्स पे। और यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा डिफ्यूज, यहाँ पे और जगह भी कोलेटरल्स देता जाएगा, विच मीन्स इसका बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड अपन बोल सकते हैं, इसके सेंसेशंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अब कुछ फीचर्स अपन ने यहाँ पे बोले थे कि एक तो ये कोलेटरल्स देने वाले हैं टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, हेयर इज़ द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इट वुड बी गिविंग सम कोलेटरल्स टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, एंड कॉर्टेक्स में भी इसका थोड़ा डिफ्यूज होने वाला है। तो अपन इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं पेन एंड टेम्परेचर में। तो एक बहुत ही अपन ने बहुत ज़्यादा एक चीज़ फील भी अपन खुद कर सकते हैं कि जब भी पेन होता है तो अपन को कई बार रात को भी नींद नहीं आती है। सो व्हाई इज़ इट सो। और अपन एक और चीज़, एक तो रात को नींद नहीं आती ये वाली बात होती है, और दूसरी चीज़ वी कैन नॉट एग्जैक्टली लोकलाइज द पोजिशन एट वेयर द पेन इज़ अकरिंग। सो वाई इज़ इट सो, रात को नींद नहीं आती क्यों, बिकॉज द कोलेटरल्स आर गिवन टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑल्सो, एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व विद द अराउजल, ओके। और फिर दूसरी चीज़ अपन ने बोली कि दैट वी कैन नॉट लोकलाइज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ दैट पेन, दिस इज़ बिकॉज सेंसरी कॉर्टेक्स में जो जब जाने के बाद ये क्या होने वाले, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होने वाले हैं फाइबर्स, तो अपन एग्जैक्ट पोजिशन अपन इसकी नहीं बता पाते, ओके। सो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसके मैं एक फ़ीचर भी बता देती हूँ। क्या होता है इसके फीचर में कि जो न्यूरॉन्स जो लेके आ रही हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, वो होंगे यहाँ पे ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ए डेल्टा, और वहाँ पे जो अपन ने बात करी थी पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसमें थे ए अल्फा एंड ए बीटा, और यहाँ पे होने वाले ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। So now let's talk about the dorsal or the posterior spinocerebellar tract, okay। तो अब मैं बात करूँगी डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की।
एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड से टिल द सेरिबेलम ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन वुड कम. ओके, सो वंस अगेन लेट्स ड्रॉ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो वापस से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं दे विल अराइज फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लिया ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते थे, जैसे यहाँ पे रिसेप्ट जो फाइबर्स आए दे वुड कम टू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड डॉर्सल रूट गैंग्लिया से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स विल अराइव. ओके, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है ये कहाँ पे रिले होंगे, they would end up to the Clark's column of cells. Okay, Clark's column of cells and at first order neurons जो होने वाली है they would end at the Clark's column of cells. Okay, so Clark's column of cells जो होगा उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज होने वाली है. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स विल क्रॉस द मिड लाइन थ्रू द एंटीरियर कमिशर एंड दे वुड एंटर द लेटरल वाइट कॉलम. ओके, सो लेटरल वाइट कॉलम पे ये एंटर करेंगी एंड द फाइबर्स विल गो अपवर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्ड्स जाने के बाद ये क्या होने वाला है कि अपन बात करेंगे मेड्यूला वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कंडीशन एज द फाइबर्स मूव अपवर्ड. ओके, सो हेयर इज़ द मेड्यूला. यहाँ पे जो फाइबर्स है वो मेड्यूला तक गए एंड मेड्यूला के बाद यहाँ पे वी नो दैट हेयर इज़ द सेरिबेलम. ठीक है, एंड मेड्यूला को यहाँ पे ये कौन कनेक्ट कर रहा है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल. इन्फीरियर सेरिबेलम से कौन कनेक्ट कर रहे हैं, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ओके, सो द फाइबर्स विल गो अप टू द मेड्यूला एंड मेड्यूला के बाद जाने के बाद ये क्या करने वाले हैं, दे वुड एंटर द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल पे एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हेयर दे विड एंड. ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वापस से अराइज होंगे. यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होने वाली है एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे जाएंगे, they would go to the anterior and the posterior lobes of the cerebellum. Third order neurons will go to the anterior and posterior lobes of the cerebellum. सो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पे जाने वाली है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द सेरिबेलम पे जाने वाली है. ओके, एंड दे वुड रिले द सेंसेशंस. ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनोसेरिबेलर डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट. इसके फंक्शंस में आता है, क्या होता है इसके, अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक इम्पल्सेस. अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक इम्पल्सेस. व्हाई आर दीज नीडेड नाउ, ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी पोस्चर. ठीक है, regulates body posture. So we have discussed about the dorsal spinocerebellar tract. Now I'll be talking about the ventral spinocerebellar tract. Okay, so the ventral spinocerebellar tract. Okay, now let's again draw the transverse section of the spinal cord here. सो द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की वंस अगेन यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बाद फाइबर्स इन्फॉर्मेशन लेके गए टू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से ओरिजिन होएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स अब यहाँ पे क्या होते हैं, दे वुड अगेन एंड अप टू द क्लार्क्स कॉलम ऑफ सेल. ठीक है, क्लार्क्स कॉलम ऑफ सेल पे ये वापस से एंटर करने वाली है, एंड हो जाएंगे ये कॉलम ऑफ सेल्स पे ये एंड होने वाली है. ओके, फ्रॉम हियर द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स विल अराइज एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स मिड लाइन को क्रॉस करेंगी एंड आफ्टर क्रॉसिंग द मिड लाइन दे वुड मतलब ये मिड लाइन किससे क्रॉस करने वाली है, एंटीरियर एंटीरियर कमिशर से क्रॉस करेंगी मिड लाइन.
और फिर ये कहाँ पे आ जाएंगे, लेटरल वाइट कॉलम पे आने वाली है। ठीक है, जो अब क्रॉस करने के पे भी ये होता है कि मोस्टली तो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है दे वुड क्रॉस, बट कुछ क्रॉस नहीं भी करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे दे वुड रन अपवर्ड थ्रू द वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम। अब यहाँ पे एक होता है रेड न्यूक्लियस। ठीक है, अब अपन इधर का सेक्शन अगले ट्रांसफर सेक्शन में बना के देखते हैं। हियर इज़ द रेड न्यूक्लियस और यहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं। अब ये रेड न्यूक्लियस से एक शार्प टर्न लेने वाले हैं एंड दे वुड फ्रॉम द सुपीरियर पेडंकल, ये किस पे एंटर करने वाले हैं, टू द सेरिबेलम। ठीक है, सो शार्प टर्न एट रेड न्यूक्लियस and through the superior cerebellar peduncle. In the dorsal spinocerebellar tract, we discussed that the fibers were going through the this inferior cerebellar peduncle, but here they are going through the superior cerebellar peduncle. Okay, और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाने के बाद ये कहाँ पे आ जाएंगे, सेरिबेलम में। और सेरिबेलम के भी कौन से लोब में आने वाले, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से अराइज होंगे एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स विल एंड अप एट द एंटीरियर लोब ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, एंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ओके, सो अब यहाँ पे अपन ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का पाथवे अपन ने डिस्कस करा है। नाउ इसकी फंक्शन इज एज सेम एज द डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है, अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक इम्पल्सेस में, अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक इम्पल्सेस में इसका फंक्शन होता है। ओके, विच मीन्स अगेन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी पोस्चर। ओके, so we have discussed the ventral spinocerebellar tract also. Now lastly we need to discuss about the anterior spinothalamic tract or the ventral spinothalamic tract, we can say anterior spinothalamic tract. So once again I'll draw the transverse section of the spinal cord here. So this is the dorsal root ganglia. The fibers would come to the dorsal root ganglia and from the dorsal root ganglia यहाँ पे क्या होने वाला है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स डोर्सल रूट गैंग्लिया से अराइज होंगे। ठीक है, अब डोर्सल रूट गैंग्लिया से या फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से ये अराइज होने वाली है। ठीक है, और ये कहाँ पे एंड होंगी, टू द मीडियन पार्ट ऑफ द डोर्सल हॉर्न। ये डोर्सल हॉर्न है, इसके मीडियन पार्ट में ये एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये एंड होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आने वाला है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एंटीरियर वाइट कमिशर, दिस इज द एंटीरियर वाइट कमिशर एंड एंटीरियर वाइट कमिशर के थ्रू ये क्रॉस कर जाएंगी और ये असेंड होंगी टू द एंटीरियर वाइट कॉलम के थ्रू। अब ये असेंड होती जाएंगी। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर वाइट कॉलम और ये एंटीरियर वाइट कॉलम के थ्रू असेंड हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स डोर्सल रूट गैंग्लिया से अराइजिंग, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स विल अराइज through the median part of the dorsal horn, and the second order neurons will cross the midline and they would run upwards. Okay, so now let's see the transverse section again of this the fibers which are ascending. Okay, this is the thalamus. Okay, so the fibers which are ascending through the spinal cord, they would enter the thalamus, and where in the thalamus, in the ventero-posterior nucleus of the thalamus, ventero-posterior nucleus of thalamus. Okay, so this was the anterior spinothalamic tract. Okay, what are the functions of this tract? Functions are crude touch and tactile localization. You can easily see that these functions are primitive in nature, which means the anterior spinothalamic tract is quite primitive in nature as compared to the dorsal or the posterior spinothalamic tract. Okay, so we can say that the crude touch and tactile localization, they both are included under the protopathic sensations. Okay, protopathic sensations means the primitive sensations. Okay, तो प्रोटोपैथिक सेंसेशंस की भी अपन ने बात कर लिया। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बात कर लेते हैं कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के और
लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट प्लस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है उसको अपन एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। टुगेदरली इसको बोला जाता है एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोला जाता है इसको। और स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या होएगा, अगर जब स्पाइनल लेमिनिस्कस व्हेन इट इज कंबाइंड विद द fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus, ओके, व्हेन कंबाइनिंग विद द fasciculus gracilis एंड cuneatus, this forms the medial lemniscus, medial lemniscus। ओके, सो अपन ने यहाँ पे बात कर ली है मीडियल लेमिनिस्कस की भी। ये चीज़ है कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था उसमें भी वही होगा कि जो थैलेमस के बाद जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो उससे अराइज होंगे एंड थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल दे वुड एंड इनटू द सेंसरी कॉर्टेक्स। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज दैट जो एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है इट डज नॉट नीड एनी इंटैक्ट कॉर्टेक्स, मतलब इंटैक्ट कॉर्टेक्स की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, बट अगर अपन बात करें दिस वन द पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसको इंटैक्ट कॉर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है एंड इट इज़ अ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लास्टली लेट्स डिस्कस some clinical aspect. This is the transverse section of the spinal cord. Here is the central canal and this is the anterior white commissure. Okay, if we talk about the syringomyelitis, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन अकर्स इन द एंटीरियर कमिशर। ओके, अब एंटीरियर कमिशर में इफ देयर इज एन इन्फेक्शन सो व्हाट फाइबर्स मतलब वुड बी अफेक्टेड, होने वाले हैं अफेक्ट द पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स। ओके, सो पेन एंड टेम्परेचर फाइबर्स ऑफ द अपोजिट साइड वुड बी अफेक्टेड, would be affected in the syringomyelitis, क्योंकि बिकॉज यूजली यहाँ पे जनरली क्या पे होता है एंटीरियर कमिशर को ही अफेक्ट करता है, ऑफ ऑपोजिट साइड वुड बी अफेक्टेड। बट जो फाइन टच है और या फिर प्रोप्रायोसेप्शन वगैरह है ये नहीं हो पाए, ठीक है, फाइन टच एंड प्रोप्रायोसेप्शन जो है ये अफेक्ट नहीं होगा, सो इट वुड बी वर्किंग। So this is all for this video. Thanks for watching.